الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. میں آغاز میں آپ تمام حضرات سے ان اکابرین علماء کرام جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کی موجودگی میں درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیجئے. صاحب صدر ذی وقار علماء کرام جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران اور انصار الاسلام کے مخلص رضاکاروں، سوشل میڈیا کے جوانوں، آج کے آپ کے اس کے عظیم الشان اجتماع میں مجھے حاضر ہونے کا حکم ہمارے حضرت مولانا اسحاق لغاری زید مجدہم نے دیا. انہوں نے ہمارے حافظ عبدالقادر صاحب، بھائی امان اللہ صاحب، رحمت اللہ صاحب اور دیگر حضرات کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ میں آج کے پروگرام میں حاضری دوں. سٹیج پر ہمارے بہت محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب زید مجدہم، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب بھٹو زید مجدہم اور دیگر اکابرین تشریف فرما ہے. آج کا پروگرام استاد محمد عیسیٰ ماہر کی یاد کے حوالے سے ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین کہہ دو بھائی. حضرات محترم، مجھ سے قبل آپ کے علاقہ کے خطیب بڑے خوبصورت انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. میرے بعد جرنیل سندھ حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو صاحب آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے یقیناً حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. میں بھی آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے کھڑا ہوں. گلا بھی میرا تھکا ہوا ہے، سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ میرا رب شرح صدر فرمائے گا. میرے ساتھ تعاون یہ کریں گے کہ جب بھی کوئی بات پسند آئے گی تو کیا کہیں گے؟ آواز نہیں آئی ابھی آپ. مجھے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا میں سندھ میں بیٹھا ہوں. ابھی بھی
आवाज नहीं आई। अल्लाह का नाम लेते हुए नहीं शर्माना है। हम अल्लाह का नाम भी लेते रहेंगे, आका दो जहां पर दरूद भी पढ़ते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। जब आका का नाम आए तो सबने क्या कहना है? सल्लल्लाहु। ऊंची आवाज से कह दो सल्लल्लाहु। और जरा मिलकर ऊंची आवाज से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है, जिसे मदीना मुनव्वरा जाने का शौक है, यकीनन सबको शौक है। अल्लाह हमें मक्का भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। आमीन कह दो। मदीना के बारे में हमारे अकाबर कहा करते थे, हमारे अकाबरीन में सिंध के वासियों, आप सिंध के खुश नसीब लोग हो। यहाँ पर कितने कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत अमरोटी गुजरे हैं, हजरत हालजी गुजरे हैं, हजरत बेर शरीफ वाले हजरत सोमरानी गुजरे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब में हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद आते हैं, मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी आते हैं, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी आते हैं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती आते हैं, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद आते हैं, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी आते हैं, हजरत सिराज अहमद दीनपुरी आते हैं, हजरत मौलाना उबैदुल्ला अनवर आते हैं, हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद आते हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अजमल खान आते हैं, हजरत मौलाना हामिद मी आते हैं। एक ही पैगाम देते हैं, अपने अकाबर को पढ़िए, अपनी तारीख को पढ़िए। एक ही पैगाम है, अल्लाह का नाम लेते रहना, नबी आखिर ज़मां पर दुरूद पढ़ते रहना। दुरूद पढ़ना तुम्हारा काम है, मदीना में पहुंचाना मेरे रब का काम है। दुरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह, मिलकर कहो ना इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। आपके चमकते हुए चेहरे देख रहा हूँ। सिंध के वासियों, इस इलाका में रहने वालों, मैं अपने जज्बात का इजहार शायद पूरी तरह नहीं कर सकूंगा। मेरा गला मेरे साथ नहीं दे रहा है, मेरा गला भी गीला कर रहा है, लेकिन मेरा ईमान है जब मैं अल्लाह की तौहीद की बात करूंगा, आका दो जहां की शान की बात करूंगा, मैं शम्अ रिसालत के परवानों का जिक्र करूंगा, अल्लाह मेरा सदर फरमा देगा। आइए आगाज करते हैं, मदीना मुनव्वरा से आगाज करते हैं, जहां पे आज मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। रब ने मदीना मुनव्वरा को भी चुना है, मक्का मुकरमा को भी चुना है। चांद पर जाने वालों ने जब दुनिया पे नजर डाली है, चांद पे पहुंचने वाले कहते हैं हमने जब सारी दुनिया को देखा है, आलात लगा के देखा है, सारी दुनिया में हमें अंधेरा नजर आया है, दो जगह चमकती हुई नजर आई है। सोच रहे थे ये जगह कौन सी है, नक्शे पर जब गौर किया है तो हमें जो जगह चमकती हुई नजर आई है वो बैतुल्ला नजर आया है और मैंने नबी का रोजा नजर आया है। दुनिया मानती है और रब ने उस जगह पर क्या मकाम, क्या रुतबा है, मक्का की क्या शान है, मदीना की क्या शान है। मक्का की अपनी शान है, मदीना की अपनी शान है। हाजी मक्का में जाता है, हाजी मदीना में जाता है, वो जाजे किराम गए हुए हैं। इंशाअल्लाह रब सबको लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं चींटी की ख्वाहिश हुई थी, रब्बा मुझे अपना घर दिखा दे, मैं तेरे घर का दीदार करना चाहती हूँ, तेरे घर का तवाफ करना चाहती हूँ। चींटी का भी अकीदा है, मुझे पहुँचाएगा तो मेरा रब पहुँचाएगा। हमारा भी अकीदा है, मक्का हमें पहुँचाएगा तो मेरा रब पहुँचाएगा, मदीना पहुँचाएगा, मेरा रब पहुँचाएगा। लेकिन मेरे यारों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, अपने अकाबर के पैगाम को न भूलना, अपने अकाबर की तारीख को पढ़ो। शेखुल हिंद के मानने वालों, हजरत मौलाना कासिम नानौतवी के मानने वालों, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के मानने वालों, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के मानने वालों, हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के मानने वालों, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी के मानने वालों, मैं जिन अकाबर का जिक्र कर रहा हूँ, इन पर अगर गुफ्तगू का आगाज करूँ तो मुझे वक़्त चाहिए, लेकिन इख्तिसार मद्दे नजर है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी
बुखारी का मानने वालों, मौलाना यूसुफ बिनौरी का नाम लेने वालों, आओ आपको पैगाम देना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। मेरे अकाबर जहाँ पर गए हैं उन्होंने अल्लाह का कुरान नहीं छोड़ा है, अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा है, नबी पर दुरूद नहीं छोड़ा है, रब ने उरूज अता कर दिया है। आप भी अल्लाह का जिक्र करते रहिए, नबी पर दुरूद पढ़ते रहिए। खुदा की कसम, मेरा रब आपकी दुनिया भी बना देगा, मेरा रब आखिरत भी बना देगा। जिक्र करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मिलकर कहो ना इंशाअल्लाह। आप मुझे थके हुए लगते हैं, मुझसे ज्यादा थके हुए लगते हैं। मेरे साथ चलिए, जिंदा दालाने लाहौर को आप जानते हैं, मैं लाहौर से आया हूँ। जिंदा दालाने लाहौर जब चलते हैं तो खतीब के साथ चलते हैं, आने वाले वाइस के साथ चलते हैं, फिर शरह सदर हो जाता है। अरे मक्का मुकरमा की अपनी शान है, मदीना मुनव्वरा की अपनी शान है। कुर्बान जाऊं, मक्का की बारी आई, मदीना की बारी आई तो मेरे रब ने कुरान में जिक्र किया है। किस मुनासिबत से जिक्र किया है? जिक्र किया है तो आमना के लाल की वजह से जिक्र किया है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत खिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे उलमा बैठे हुए हैं, अकाबरीन बैठे हुए हैं। रब कुरान में मक्का मुकरमा की और बाद मुफस्सरीन कहते हैं मदीना मुनव्वरा की कसम उठा रहा है। अल्लाह इसलिए कसम नहीं उठा रहा है कि मक्का में बैतुल्लाह है, मक्का में खतीम है, मक्का में मकाम इब्राहिम है, सफा मरवा की पहाड़ियां है, मक्का में हजर अस्वद है। रब कहता है मैं मक्का की कसम इसलिए उठा रहा हूं कि मेरा महबूब इन गलियों में चलता फिरता नजर आता है। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरूद पढ़िए ना जरा ऊंची आवाज से, आपने सबक भूलना नहीं है, याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। और मेरे अकाबर कहते हैं, अकाबर के पास आने वाला जब मुरीद होता था हजरत अमरोटी के पास आए, हालजी वालों के पास आए, भेल शरीफ वालों के पास आए, तीरपुर वालों के पास आए, हजरत दरखास्ती के पास आए तो एक जुमला कहते थे, अरे नबी की सुन्नतों को न छोड़ना, नबी पर दरूद न छोड़ना, सुन्नतें तू जिंदा करता जा, दरूद तू पढ़ता जा, अल्लाह तुझे मदीना भी पहुंचा देगा। और रात वो भी आ जाएगी जिस रात में मेरा रब सारे पर्दे हटाकर आमना के लाल की ज़ियारत भी करवा देगा। हम सबकी ख्वाहिश है आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए, सबकी ख्वाहिश है ना? जिनकी ख्वाहिश है हाथ लहरा करके है, फिर अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह से मैं दो दुआएं करने लगा हूँ, तवज्जो से सुनना, उस पर आमनी आपने अमीन कहना है। जैसे आज ये फर्जंदाने तौहीद बैठे हुए हैं, आशिकाने मुस्तफा बैठे हुए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के जियाले मतवाले बैठे हुए हैं। रब्बा मैं दुआ करता हूँ जिस तरह तूने इस पिंडाल में हमें जमा किया है, इसी तरह कल अकाबरीन के साथ हम सबको जन्नत में भी जमा फरमा देना। उसके खजानों में क्या कमी है वो बात अधूरी न रह जाए। चिऊटी की ख्वाहिश हुई मैं भी सहने हरम में पहुंचूं, बैतुल्लाह का दीदार करूं, बैतुल्लाह को देखूं, पत्थरों को देखूं, अल्लाह के घर को देखूं, मकामे हजरे अस्वद को देखूं। वो पत्थर है जिस पत्थर पर आमना के लाल के लब भी लगे हैं। आपने भी उस पत्थर को चूमा है, लेकिन उस पत्थर को जब चूमने का मौका आया है तो कौन सामने खड़ा है? मर्द कलंदर खड़ा है। सहाबा में कौन खड़ा है? हजरत उमर फारूक खड़े हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब सहाबी का नाम आए तो सबने कहना है रजी अल्लाह ताला अन्हु। और एक अकीदे का ऐलान भी इसी समय में हम कर देते हैं। हमारा अकीदा है सारे सहाबा जन्नती है, कह दो बेशक, ऊंची आवाज से कहो बेशक, सारे के सारे सहाबा जन्नती है, ऊंची आवाज से कहो। फितनों का दौर है, आज जुबानें खुलती है अकाबरीन के खिलाफ, आज जुबानें खुलती है सहाबा के खिलाफ, जुबानें खुलती है अहले बैत के खिलाफ। मेरे अकाबर का कीदा है हर सहाबी जन्नती है, नबी के घराने का एक एक फर्द भी जन्नती है। हम सहाबा के भी मानने वाले हैं और अहले बैत के भी मानने वाले हैं। बोलो सब कहो बेशक। इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं। या आज अगर इस देहात में, अरे इस मकाम पर, इस पिंडाल में अगर अल्लाह की बड़ाई के नारे लग रहे हैं, खत्म नबूवत के नारे लग रहे हैं,
कुरान खुला हुआ है। खुदा की कसम ये सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है, अहले बैत की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर वो मेहनत न करते दीन हम तक कैसे पहुंचता। अल्लाह उनसे राजी हो चुका है। हम दुआ करेंगे परवरदिगार उनको जन्नत में और आला मकाम अता फरमाए। हजरत मोहतरम मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ, इख्तिसार मद्दे नजर है। सैन हरम है, सहाबा खड़े हैं, ताबीन खड़े हैं। आज कौन मर्दे मुजाहिद सामने खड़ा है, उसके सामने अल्लाह का घर है और उधर उनकी नजर हजर अस्वद में पड़ती है। तवाफ करके आए हैं, हजर अस्वद चूमने लगे हैं। हजरत उमर खड़े हो गए, उमर इब्न अल खत्ताब खड़े हो गए, जिनके बारे में दो जुमले कहकर आपके और अपने ईमान को ताज़ा करूं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा था, शाह जी सहाबा में और उमर फारूक में क्या फर्क है। शाह जी वक्त में आगे कौन अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जो हसनी थे, हुसैनी थे, जिनकी रगों में हसनी खून दौड़ रहा था, जिनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा था। दुनिया भर तक हैरत में थी, दुनिया ने बड़े बड़ों को झुका दिया था, अताउल्लाह शाह बुखारी नहीं झुका था। इसलिए नहीं झुके थे, उनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा था। करबला के मैदान में भी हजरत हुसैन ने गर्दन नहीं झुकाई थी, गर्दन कटवा दी थी। लेकिन इज्तिमा में आने वालों हजरत हुसैन ने कुरान की तिलावत भी नहीं छोड़ी थी और अल्लाह की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। आज वादा करो हुसैनी बनेंगे, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। हसनी बनेंगे, सिद्दीकी बनेंगे, फारूकी बनेंगे। हम हजरत उस्मान के नक्शे कदम पे चलेंगे। शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा के नक्शे कदम पर चलेंगे, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। दामन नहीं छोड़ा तो आमना के लाल का दामन नहीं छोड़ा। हाथ में खत्मे नबूवत का परचम थाम के रखा, इस्लाम का परचम थाम के रखा। जाने कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया, औलादे कुर्बान कर दी। अरे सब कुछ छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा तो दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा। रब ने भी कहा तुमने मेरे महबूब का साथ नहीं छोड़ा। मैं कुरान में ऐलान करता हूँ, मेरे महबूब आप अपने शागिर्दों से राजी है, मैं खुदा भी आपके शागिर्दों से राजी हूँ। मुझे आपके नारे का लुत्फ नहीं आया, अभी आपकी आवाज तो घोटकी से बाहर भी नहीं गई। मैं सखर तक पहुंचाना चाहता हूँ, कराची और इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूँ, वहां पे बैठे हुए अमेरिका के गुलामों तक पहुंचाना चाहता हूँ। रब्बे काबा की कसम, जब तक जमीयत उलमा इस्लाम का जियाला और कारकुन जिंदा है, दीन पसंद जिंदा है, इस पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम नहीं आ सकता है, कोई अमेरिका का गुलाम आगे नहीं बढ़ सकता है। हम इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस पाकिस्तान में इस्लामी इनक़िलाब ला के दम लेंगे। अमेरिका यहूद और उलूद के गुलामों को भगा के दम लेंगे। हजरत मोहतरम सिंध के वासियों में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हजरत मौलाना खलील और रहमान आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं, आपके बलबले को आपने यहाँ पर जमात के पैगाम को बहुत आगे बढ़ाया है। और अगर मैं बात न करूँ तो ये ज्यादती होगी। हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू शहीद हुए, गोलियां खाते हुए दुनिया से गए। मौत कैसी आई? शहादत की मौत मिली है, सईदे की हालत में मिली है, सुभान रब्बी अल-आला के तराने पढ़ते हुए मिली है। दुनिया समझती थी डॉक्टर खालिद सोमरू शहीद हो जाएगा, फिर सिंध की धरती पर घोटकी में, घोटकी के देहातों में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आप जाके देखो, मेरे कायद ने कहा था, हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने लाड़काना में कहा था कि यार लोगों, तुमने हमारा बाजू तो तोड़ा है, हमारे पीठ में खंजर तो घोंप दिया है, लेकिन याद रखना वक्त आने वाला है, सिंध की हर गली से
तुम्हें डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू का नाम लेने वाला भी मिलेगा, जमीयत का परचम उठाने वाला भी मिलेगा। हज़रात मोहतरम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, घड़ी भी देख रहा हूँ, आपके चेहरे भी पढ़ रहा हूँ, अकाबरीन भी तशरीफ फरमा है, मेरे भाई भी आने वाले, मेरे अजीज भी आने वाले, अभी आपसे मुखातब होने वाले हैं। आइए मैं अपनी जो बातें छेड़ चुका हूँ उन्हीं को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। याद रखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के भी मानने वाले, अहले बैत के भी अकीदतमंद है, सहाबा के भी अकीदतमंद है। हम सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदान अमल में खड़े हैं। बड़े बड़े यजीदी आए हैं, अरे वो सारे के सारे रास्ता छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। अरे हुसैनी जब मैदान में उतरे हैं तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान जमीयत का परचम लेकर मैदान अमल में खड़े हैं। उन्होंने मिलियन मार्च किए हैं नामूस रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए, दीन इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपने उन मिलियन मार्च का हिस्सा बने हैं। अब 26 मार्च को भी हमने इस्लामाबाद जाना है इंशाअल्लाह। तैयार हो? आपकी आवाज अब ढीली ढाली हो गई है। मुझे मुजाहिदों की तरह जवाब चाहिए। मिलकर कहो इंशाअल्लाह जाएंगे, हम इस्लाम के लिए जाएंगे, कुरान के लिए जाएंगे, खत्म नबूवत के लिए जाएंगे। अरे खत्म नबूवत का परचम लहराने के लिए जाएंगे, परचम नबवी लहराने के लिए जाएंगे। यार लोगों ने समझा था मौलाना फजलुर रहमान को असेंबली से बाहर कर दो, फिर आराम से इख्तियार का हमारा निज़ाम चलेगा। उन्हें पता नहीं था अगर मौलाना असेंबली में होते तो मुश्किलात तो असेंबली की थी, असेंबली से बाहर तो उनकी मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही है। कभी मौलाना से आकर कहते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट ले लीजिए, गवर्नरशिप ले लीजिए, आप वजारतें ले लीजिए। मेरे कायद ने एक ही जवाब दिया है, हम वजारतों के लिए नहीं लड़ते, गवर्नरशिप के लिए नहीं लड़ते, वजीर आलाशिप के लिए नहीं लड़ते, हम किसी वजारत के शौकीन नहीं है। हम लड़ते हैं दीन के लिए, लड़ते हैं इस्लाम के लिए, लड़ते हैं खत्म नबूवत के लिए, लड़ते हैं। आज मेरे जवानों, मैं यहाँ पैगाम दे के जा रहा हूँ, आपने मेरा साथ देना है। हम इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक दीन के लिए भी लड़ेंगे, खत्म नबूवत के लिए भी लड़ेंगे, इस्लाम के लिए भी लड़ेंगे, इस्लाम के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे, दीन के दुश्मनों से भी लड़ेंगे, गरीबों के दुश्मनों से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान की आवाम को हुकूक दिलवा के रहेंगे, गरीबों को हुकूक दिलवाएंगे, हारियों को हुकूक दिलवाएंगे। आप मुझे बताइए, इस तहरीक में आप मौलाना के साथ चलने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, हम पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन जवानों मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। सोशल मीडिया के दोस्तों तुम भी सुनो, जब किसी का जवाब देने का वक्त आए तहजीब का दामन हाथ से न छोड़िए। अरे दीन हमें अखलाक सिखाता है, आपने पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ना है, लेकिन हम इनकलाब लाएंगे, बैलेट की पर्ची के जरिए लाएंगे, वोट की पर्ची के जरिए लाएंगे। हमारा इनकलाब बुलेट के जरिए नहीं होगा, हमारा इनकलाब बैलेट के जरिए होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पर पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले, तस्बीह वाले मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आगे बढ़ते चले जाए। आज अमेरिका कहता है पाकिस्तान की असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम झुका दो, परचम उतार दो। अमेरिका कान खोल के सुन, रब्बे काबा की कसम, जब तक पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, जमीयत का जाला जिंदा है, कोई माई का लाल खत्म नबूवत का परचम नहीं झुका सकता है। हम अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपना माल भी कुर्बान कर देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। मुझे याद आए
حضرت ابو ذر غفاری کہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے یاد آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے یاد آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے یاد آئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پر بات کروں تو وقت چاہیے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، کون ابو بکر صدیق ہے جو سب سے پہلے میدان میں اتر کر تبلیغ کے لیے آتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، ختم نبوت کا پیغام دیتے ہیں۔ کافر آگے بڑھتا ہے، کافر مل کے مارتے ہیں، زمین پر گرا دیتے ہیں، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم مبارک سوج جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا ہے، ماں سرہانے کھڑی ہے، آنے والی رشتہ دار عورتیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کے تلوے مر رہی ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، ابو بکر صدیق کو آواز دیتے ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلتی ہے، ماں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے۔ جوانوں ذرا غور سے سننا ہے، ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے میری ماں سامنے کھڑی ہے، دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا ابھی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، دیکھا تمہیں سزا کیسی ملی ہے۔ ابو بکر صدیق نے مسکرا کے کہا اماں کیا کہتی ہے، یہ مجھے نبی کے دین کے لیے مار پڑی ہے، ختم نبوت کے لیے مار پڑی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، بیٹا دودھ پی لیجئے۔ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں میں بھی دودھ نہیں پیتا ہوں، مجھے پہلے یہ تو بتا دو میرے نبی کا کیا حال ہے، قربان جاؤں ایسے عاشقوں پر جو بستر پر پڑے ہوئے زخمی حالت میں ہے، خون نکل رہا ہے، اس موقع پر بھی انہیں اور کوئی یاد نہیں ہے، اپنا نبی یاد ہے۔ آنے والی عورت کہتی ہے آپ کے نبی خیریت سے ہے، حضرت صدیق تڑپ رہے ہیں، ماں کہتی ہے دودھ کے گھونٹ تو پی لے، تکلیف تجھے کتنی پہنچی ہے۔ جواب آیا ہے اماں میں جب تک اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھ نہیں لیتا ہوں میرے خلق سے دودھ کا ایک گھونٹ نہیں اتر سکتا ہے، ایک قطرہ نہیں اتر سکتا ہے۔ ماں حیران ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، یہ محبت کیسی ہے، کس نے دل میں ڈال دی ہے، یہ محبت بھی تو میرے رب نے دل میں ڈالی ہے۔ آج ہمارے نبی موجود تو نہیں ہے لیکن یہاں گھوٹکی کا جوان میرے نبی سے پیار کرتا ہے، کیوں پیار کرتا ہے، رب نے دل میں محبت ڈالتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہ محبت نکال دو، خدا کی قسم امریکہ سارے کا سارا مل جائے یہ محبت نہیں نکال سکتا ہے، یہ محبت انشاءاللہ نسلوں میں منتقل ہوگی، قیامت کے دن تک منتقل ہوگی۔ عاشقان مصطفیٰ میدان نامل میں کھڑے ہو کر نبی کے عشق پر اپنی جانیں بھی نچھاور کریں گے، مال بھی نچھاور کریں گے، اولادیں بھی قربان کریں گے۔ ابو بکر صدیق سے ماں اصرار کرتی ہے بیٹا دودھ پی لو، کچھ تو استعمال کرو۔ نہیں اماں پہلے میں نبی کے چہرے کا دیدار کروں گا، اس کے بعد کوئی چیز استعمال کروں گا۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کا ذکر کرنے لگے ہو اور اونچی آواز سے کہو۔ ہمارے اکابر کہتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ شرمانا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تم پنڈال میں بیٹھ کے یاد کرو میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں۔ ذکر کرتے رہو گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اسی ذکر کا جوانوں سنا نتیجہ کیا ملے گا؟ یہ ذکر اگر روزانہ کرو گے تو آخری وقت آئے گا تو اللہ کا نام زبان پر آ جائے گا، کلمہ آ جائے گا۔ میرے نبی کہتے ہیں جس کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ آ گیا فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دعا کرو اللہ سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ میرے اکابرین نے جو درس اور سبق مجھے سکھایا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اسی زخمی حالت میں مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ سوچو تو صحیح عاشقوں کیسا وہ منظر ہوگا، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، ایک ایسا عاشق ہے مار بھی کھا لی، منہ بھی سوج گیا، خون بھی نکل گیا، ابھی بھی اسے خیال ہے تو آمنہ کے لال کا خیال ہے، سہارے کے ساتھ چلتے ہیں، آقا
आका की बारगाह में पहुंचे। अब तवज्जो करनिए, मैं जुमले कहकर अपनी बात की तान तोड़ना चाहता हूँ, आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। सहारे से चले, दाईं तरफ भी कंधे पे हाथ रखा है, बाईं तरफ भी कंधे पे हाथ रखा है। सिद्दीक जा रहे हैं और मुझे कहने दीजिए सिद्दीक ही नहीं जा रहे, साथ मलाइका भी जा रहे हैं। रब ने आसमान से फरिश्ते उतारे होंगे। देखो एक आशिक जा रहा है, अपने महबूब के दीदार के लिए जा रहा है। फरिश्तों तुम भी जाके मंजर देखो। अंदर जब दाखिल हुए आमना के लाल खड़े हो गए। मेरा अबू बकर आ गया है, अबू बकर की आंखों में आंसू है, मेरे आका की आंखें भी परनम हो गई है। आका ने उठ के इस्तकबाल किया है, अबू बकर को सीने से लगाया है। अबू बकर ने अपनी शान से आगे बढ़कर नबी की पेशानी को चूमा होगा, नबी की दाढ़ी को चूमा होगा, नबी के रुखसारों को चूमा होगा। मैं अबू बकर पे कुर्बान जाऊं। रब ने उसे कैसा नसीब दिया है, जो गार का भी साथी है, आज मज़ार का भी साथी है। हुजरे में दाखिल हुए, नबी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया है, सीने के साथ लगाया है। हजरत अबू बकर ने एक जुमला कहा है, मेरे नबी ने पहले बात कही, सुना अबू बकर तुम्हें मार पड़ी है, काफिरों ने मारा, दुश्मनों ने मारा। सिद्दीक की जुबान पर क्या जुमला आता है, आका बड़ी तकलीफ हुई, मार पड़ी है, जख्म पड़ गए, वजूद मेरा चूर चूर हो गया है, लेकिन खुदा की कसम आमना के लाल मेरी जैसे ही आपके चेहरे पे नजर पड़ी है, मेरी सारी तकलीफें भी दूर हो गई है, सारे दर्द भी खत्म हो गए। हजरत मोहतरम, मुझे अगर एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आते हैं तो दूसरी तरफ मुझे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा भी नजर आते हैं। अगर गार के अंदर हजरत अबू बकर की एड़ी पर मुझे नबी का लुआबे दखल लगता हुआ नजर आता है, तो एक मौका पर मेरे नबी की जुबान से जुमला निकला था, सुबह झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता है। हर सहाबी की ख्वाहिश है ये मरचम मुझे मिल जाए, झंडा मुझे मिल जाए। इसी असना में सुबह होती है, सबने दुआएं की होगी, तहज्जुद के वक्त उठे होंगे, अल्लाह से मुनादी की होगी, रब्बा मेरा नाम निकल आए। लेकिन नबी की जुबान पर सुबह जब नाम आया है, फरमाया मेरा अली कहा है, अली को आगे लेकर आओ। अली कहते हैं आका मेरी आंखें दुख रही है, फरमाया अली को पकड़ कर लेकर आओ। और मेरे सहाबा, अली मुझसे भी प्यार करता है, रब से भी प्यार करता है, मेरा रब भी अली से प्यार करता है और आमना का लाल भी अली से प्यार करता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, आका मेरी आंखें दुख रही है, फरमाया आगे तो आओ। आपने लुआबे दखन अपने मुंह मुबारक से निकाल कर हजरत अली की आंखों पे जैसे ही लगाया है, हजरत अली कहते हैं मुझे ऐसे महसूस हुआ है कभी पहले ये तकलीफ ही नहीं हुई है। अल्लाह ने मेरी सारी तकलीफ नबी के लुआबे दखन के सदके में ठीक फरमा दी है। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मैं आखिरी दो जुमले कहता हूँ, आपको याद हो न याद हो, मुझे अल्लाह के फजल से याद है, मुझे सैन हरम भी याद है, मुझे अमीर शरीयत भी याद है, मुझे उमर फारूक भी याद है रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब हजर अस्वद के सामने खड़े हुए तो एक जुमला फरमाया, ऐ पत्थर मैं तुझे कभी भी न चूमता, मैं जानता हूँ न तू नफा दे सकता है, न नुकसान दे सकता है, न मुश्किल कुशाई कर सकता है, न हाजत रवाई कर सकता है। यहाँ के बासियों, मुझे आज यहाँ से बताकर आपने निकलना है। अमीर अल्लामा तशरीफ लाया चाहते हैं, आपने जवाब दे के जाना है। सबकी मुश्किल कुशाई करने वाला, सबकी हाजत रवाई करने वाला, नीली छत वाला है, जरा मिल के बता दो उसका नाम क्या है। आवाज आनी चाहिए, आवाज अभी भी नहीं आई है। दिल से कहो, जोर लगा कर कहो, हाथ लगा के कहो, शहादत की उंगली उठा के कहो। क्या पता है रब को आपका ये अंदाज पसंद आ जाए, अपनी जगह आप बाद में छोड़ेंगे, रब मग़फ़िरत पहले फरमा देगा। हजरत उमर ने मुखातब किया हजरत से, मैं कभी भी ना चूमता, फरमाया मैं तुझे आज इसलिए चूम रहा हूं, मेरी आंखों ने देखा है कि तुझे आमना के लाल ने चूमा है। सुभान अल्लाह। आप भी जब जाएंगे तो पत्थर को चूमते वक्त ये तसव्वुर करेंगे कि इस पत्थर को नबी आखिर ज़मान ने चूमा है। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछने वाले ने पूछा, शाह जी
صحابہ میں عمر فاروق میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا کیا سوال کر دیا ہے، میرے نبی کے 1.25 لاکھ شاگرد تھے، سنو وہ 1.25 لاکھ ایک طرف ہے، عمر ایک طرف ہے، فرمایا وہ 1.25 لاکھ میرے نبی کے مرید بن کے آئے تھے، عمر میری رب نبی کی مراد بن کر آئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں، آج پاکستان میں آپ نے دیکھا کلمے کے نام پر بننے والا پاکستان، آج اس میں بے پردہ خواتین نے میدان میں اتر کر اسلام کے خلاف باتیں کی ہے، انہوں نے آزادی مانگی ہے، انہوں نے نعرہ لگایا ہے جسم ہمارا ہے تو مرضی بھی ہماری ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جسم بھی رب کا ہے تو مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ کہہ دو بے شک، مل کر کہو بے شک، یہ پارٹی یہ جسم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ مرضی کس کی چلے گی؟ وہ بے پردہ آئی، این جی اوز کی نمائندہ بن کر آئی، لیکن یاد رکھو پاکستان میں 95% عورتیں وہ ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں تو 98% وہ ہے۔ پوچھئے مولانا قاسم سے، ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان مکرم سے پوچھئے، حافظ عبدالقادر صاحب سے، مولانا خلیل الرحمن درخواستی سے، آج بھی پاکستان میں 98% وہ عورتیں ہیں جو حضرت خدیجہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہیں، 98% عورتیں وہ ہیں جو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے۔ مولانا راشد صاحب تشریف لے آئے، انہی کے حوالے کرنے لگا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اس شعر پر بات مکمل کرتا ہوں۔ الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔